All right. So we were discussing similar triangles that day, and today what we will be doing is, oh God, I'm sorry. Today what we will be doing is we will be solving the questions. हम लोग एक क्वेश्चन आया था मेरे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, so I want you guys should also do it. So the question was this one. This is the question. लिखिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए because the figure is little bit blurred. In this figure, AE is the bisector of exterior angle CAD. जो exterior angle CAD है उसका bisector है AE and it is meeting BC produced at E. This exterior angle bisector AE is meeting BC produced at E. Now your question is, if AB is equal to 10, AC is equal to 6, then you have, and BC equal to 12, then you have to find the value of CE, which has been represented in the question as X. And the time allotted for this question is, just 2 minutes, not more than 2 minutes. Come on. Questions आपको clear है? Please confirm and say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये ट्रायंगल ABC है. इस ट्रायंगल ABC में AE जो है that is the external angle bisector of एंगल A, और उसके बाद हमें कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं that is AB is equal to 10, AC is equal to 6, BC is equal to 12 and CE is equal to X. What you have to calculate? The value of X. बहुत ही आसान क्वेश्चन. Completed. Completed. Okay, good. How much answer you are getting? 8 centimeter. 8 centimeter. Okay. Okay. Let me see, because I guess I have some other answer. You said 8 or 18? जिसका आंसर दिया था अभी आपने 8. 8. Okay. Are you sure you don't want to recheck your answer? Yes, I am doing that only. Okay. When Okay. I see the... Please. Oh, one more answer. That's interesting. चल 2 मिनट हो गए भाई क्वेश्चन के. हाँ, this question Yes, sir, doesn't. it's 18. Yeah, this question doesn't deserves more than 2 minutes and calculation के लिए it should be completed in 30 seconds. देखो कैसे करेंगे अगर मैं कर पाया तो. चल कैसे करेंगे. हम लोगों ने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा था उस दिन, और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इज in a triangle ABC, if AE is the bisector of angle A meeting BC at E, then AB upon AC is equal to BE upon EC. AB upon AC will be equal to BE upon EC. सेम मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि बेटा अगर ABC, ये तो अपन ने इंटीरियर एंगल की बात की थी, अगर मान लो एक्सटीरियर एंगल की हम बात करेंगे तो उस केस में व्हाट विल हैपन हियर इज, अगेन द रिजल्ट विल बी द सेम. एक्सटीरियर एंगल की अगर अपन बात करें तो अगेन द रिजल्ट विल बी द सेम बट विथ लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन. ये हो गया ABC
and this is exterior angle. Suppose this point is some point D, this point is B, this point is A, this point is, sorry, this point is A, this point is B, this point is C. और अगर इस एंगल के बाइसेक्टर की बात करते हैं तो it is meeting the side BC at some point E. So what we will have is, again the result will be same. BE upon EC will be equal to AB upon AC. The result will be same here also. Nomenclature कुछ इस तरीके से किए जाते हैं कि रिजल्ट जो है दोनों केस में सेम रहे. So now we have to apply the result. कैसे अप्लाई करेंगे सर? AC AB की वैल्यू कितनी है सर? AB की वैल्यू है 10, पुट कर दीजिए. AC की वैल्यू कितनी है सर? AC की वैल्यू है 6, पुट कर दो. BE की वैल्यू कितनी है सर? BE इज बेसिकली BC प्लस CE. तो यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए BC प्लस CE, और उसके बाद में ये जो CE है वो कितना है सर? उसको फिलहाल के लिए CE से रिप्रेजेंट कर. Now what we will have is 10 upon 6 is equal to BE is 12 plus X divided by your CE is X. So this will be 5, this will be 3. Cross multiplying, what we will have is 5X is equal to 36 plus 3X, or 2X will be equal to 36. That gives me X is equal to 18. समझ में आया? Say yes or say no. जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, I don't know his name, his or her name. बेटा क्या आपको समझ में आ गया? If you don't want to speak, you can write public. You can write in chat also. क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? Please confirm बेटा, so that it will be easy for me to proceed. Okay, thank you. Thanks for confirmation. So ये क्वेश्चन तो एक बच्चे को तो समझ में आ गया भाई, जिसने क्वेश्चन भेजा था उसको तो समझ में आ गया. बाकियों को, क्या आप लोगों को भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया? प्लीज कंफर्म सबको, because I want to. I'm concerned about. Yes, sir. I'm concerned about everyone. I'm not concerned about say any XYZ. I'm concerned about everyone. Thank you. Thanks for confirmation, everyone. चलो आगे बढ़ते हैं. धीरे धीरे बढ़ेंगे because this topic is very important. अगर ये टॉपिक आपका मिस हो जाता है, अगर आप ये टॉपिक को ठीक से नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी. What I want you all to do is take screenshot of these questions. Take a screenshot of these questions. ठीक है? मैं क्या करूँगा कि I will we will discuss these questions. Fine. Take a screenshot of these questions and after the class आप इन questions की practice जरूर करना, because I have done a lot of hard work in selecting these questions. So I want you all to practice these questions. Please take a screenshot of this. ठीक है? This question we have already discussed. Take a screenshot of this also. वैसे ये तो शायद कर लिया था हम लोगों ने, if I am not wrong. चलो ठीक है. अब इसके बाद जो है हमारा ये वाला टॉपिक हो गया, ये इसके क्वेश्चंस अपन ने देख लिया. अब आज अपन बात करेंगे सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया. सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया हम लोगों ने पढ़ लिया था उस दिन. क्या क्या सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया थे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. 3 क्राइटेरिया हम लोगों ने पढ़े थे सर. पहला क्राइटेरिया वाज ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, और इसी क्राइटेरिया से सर एक और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया निकल के आया था. डेट वाज ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. कैसे निकल के आया था सर? क्योंकि देखो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है. तो अगर तीनों एंगल, अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो डेफिनेटली थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल. तो इसलिए अपन ने ट्रिपल ए से अपन ने डिड्यूस किया था डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आल्सो. ओके या देन तीसरा था एसएसएस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. मतलब अगर रेशियो ऑफ 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज प्रोपोर्शनल, 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो प्रोपोर्शनल है
In that case, the triangle will be similar. Third was SAS similarity criteria. Now, what was this SAS? SAS similarity criteria was कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हो और उन दोनों के साइड्स के बीच का जो एंगल है अगर वो इक्वल है, in that case we will say that the triangles are similar by SAS similarity criteria. Fine. So this was all about अपन ने तीन टाइप के सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़े थे. अगेन दिस क्राइटेरिया इन क्राइटेरिया का प्रूफ इज नॉट इन योर सिलेबस, सो वी वोंट बी डीलिंग विद द प्रूफ इन डिटेल. वी वोंट बी डीलिंग विद द प्रूफ इन डिटेल. ठीक है. अच्छा, आप लोग के चलो वी विल टॉक अबाउट दिस इन द लास्ट 5 मिनट्स. मेरे को याद दिला देना कि कुछ लास्ट 5 मिनट में आपको उससे कुछ बात करनी है मेरे को. ठीक है. ये कुछ रिजल्ट्स अपन ने पढ़े थे इन सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया के ऊपर कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका पेरीमीटर भी क्या होगा, वो भी दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनका पेरीमीटर विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. अगर ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर हैं तो जो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस. Similarly, for equiangular triangles, for equiangular triangles, the ratio will be the ratio of sides will be same as the ratio of corresponding angle bisectors, and the same thing goes for the corresponding altitudes also. मतलब अगर दो triangles equiangular हैं तो उनका जो corresponding sides का ratio होगा that will be same as the ratio of their corresponding medians. That will also be the same as the ratio of their corresponding angle bisectors, and finally it will also be same as the ratio of their corresponding altitudes. Okay, चलो next. इसी के बेसिस पे कुछ और रिजल्ट्स अपन ने पढ़े थे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ठीक है अगर रिजल्ट है तो देखेंगे whenever we will solve the questions. क्योंकि ये बात सही है कि ये रिजल्ट्स आपको याद नहीं रहेंगे. ये तीन रिजल्ट्स अगर आपको याद रह गए तो ये चार रिजल्ट्स याद रह गए तो बहुत अच्छी बात है. एंड इनके बेसिस पे ही अपन क्वेश्चंस करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू हैव कंसर्न अबाउट दीज रिजल्ट्स, क्या है क्या नहीं है छोड़ो रहने दो. वी विल डिराइव इट. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है इन ट्रेपेजियम एबीसी. अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चंस कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं. चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग. इन अ ट्रेपेजियम एबीसीडी, AB is parallel to CD, AB is parallel to DC such that DC is equal to twice of AB. EF is drawn parallel to AB and cuts AD in F and BC in E such that ये रेशियो दिया हुआ है. डायगोनल DB intersects EF at G. कुछ प्रूफ करना है तो प्रूफ करना है तो कर देंगे प्रूफ, क्या कर सकते हैं. चलो ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ. एंड द टाइम अलॉटेड फॉर दिस इज, यार किसी को पता है क्या कि मोबाइल में कैसे टाइमर लगाते हैं, आई मीन लैपटॉप में कैसे टाइमर लगाते हैं? कोई बता सकता है, हेल्प कर सकता है मेरे को बार बार मोबाइल में टाइम देखना अच्छा नहीं लगता. द टाइम अलॉटेड फॉर दिस इज अगेन 2 minutes. इट्स 23:50 in my watch, in my timer that is showing me, and I will ask you to stop after 1.5 minutes. ठीक है. 25:30 पे मैं आप लोगों का बोलूंगा स्टॉप करने के लिए. सो कंटिन्यू, आई एम ऑल्सो ट्राइंग.
कैसे करे भाई, बड़ी मुसीबत है, तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहा। किसी का हुआ? एनीबॉडी? वेरी गुड। ओनली वन स्टूडेंट। और किसी का हुआ प्लीज? चलो देखो, this is just a simple question of using the concept of BPT and area and similarity of triangles. सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी जस्ट बी फोकस्ड अबाउट ट्रायंगल BCD वेयर EG इज पैरेलल टू CD। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। दिस इज B, this will be E, this will be G, and this will be E के नीचे आ गया C, and ये here we are having D। अब देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता है कि ये जो EG है, this EG is parallel to CD। ठीक है, जो मैं लिखता जा रहा हूँ, आप लोग, मेरे को लगता है आप लोग थोड़ा बातें कम करते हो, तो जो मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, अगर किसी को उस लिखे हुए में डाउट हो, जस्ट स्टॉप मी देन एंड देयर ओनली। ठीक है, EG इज पैरेलल टू CD। क्यों क्यों कहा आपने सर ऐसा? बिकॉज दिस इज गिवन। Therefore, my dear students, this angle 1 will be equal to angle 2। Angle 1 will be equal to angle 2। क्यों कहा सर आपने ऐसा? Because these are corresponding angles between parallel lines। ये लिख देना यार, corresponding angles मैंने लिख के छोड़ दिया, आप लोगों को corresponding angles between parallel lines लिखना पड़ेगा। ठीक है, so angle 1 will be equal to angle 2। Further, angle B is equal to angle B। Therefore, this triangle BEG will be similar to triangle BCD। So what I will have, EG upon CD will be equal to BE upon BC। देखो यहाँ पे नॉर्मली 90% ऑफ जनता जो मिस्टेक करती है वो ये करती है कि सर BE अपॉन, ये तो ठीक है, EG अपॉन CD विल बी इक्वल टू, वो लिख के आ जाएंगे BE अपॉन EC, एंड दैट इज टोटली रॉन्ग। इसलिए दैट इज टोटली रॉन्ग, मैंने उस दिन भी आप लोग को बताया था सर, क्योंकि यहाँ पे हम इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे जो है हम इस ट्रायंगल की, ये जो ट्रायंगल BEG है उसके साइड्स लेंगे, और दूसरा हम इस ट्रायंगल के साइड्स लेंगे ना, ट्रायंगल BCD के। इसलिए हियर इट विल बी BE अपॉन BC। अब BE तो मुझे 3 दिया हुआ है, एंड BC इज बेसिकली BE प्लस EC। So this will be 3 upon 4 plus 3, which is equal to 3 upon 7। ठीक है, सिमिलरली व्हाट आई कैन से इज, अब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूंगा। हियर व्हाट आई विल हैव, हियर व्हाट रिजल्ट आई विल गेट, FG। सर, हाँ बोलिए। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं सर वो रेशियो वाले से? हाँ प्लीज कर देता हूँ। ठीक है, ओके फाइन, आई हैव वन ब्लैंक पेज। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। देखो क्वेश्चन मेरे को बता दो क्या है, फिर चालू करते हैं। जो CD दिया हुआ है वो ट्वाइस ऑफ BC है। ठीक है, और इस तरीके से ये मेरा ट्रेपीजियम हो गया। दिस इज ABC एंड नहीं, दिस वाज D एंड दिस वाज C। ठीक है, एंड दिस वाज E एंड दिस वाज F, ऐसा ही कुछ था। एंड दिस CD वाज इक्वल टू
ट्वाइस ऑफ ए बी। तो अपन ने सबसे पहले अपन ने क्या किया था, ये पॉइंट है, दिस वाज जी। पहले हमने इस ट्रायंगल की और इस ऊपर वाले ट्रायंगल की बात की थी, एंड वी फाउंड दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्यों सिमिलर था ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अब जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे, व्हाट आई हैव फाउंड इज ट्रायंगल बीईसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीसीडी। फाइन। सो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो व्हाट वी विल हैव इज बीई डिवाइडेड बाय बीसी इज इक्वल टू जीई डिवाइडेड बाय CD। अब BE कितना दिया हुआ था, ये 3 दिया हुआ था और ये 4 दिया हुआ था। सो दिस विल बी BE डिवाइडेड बाय BE प्लस EC, एंड हियर इट विल बी GE डिवाइडेड बाय CD। तो दिस ये BE कितना है, 3 दिया हुआ है, एंड दिस BC इज 3 प्लस 4, और ये हो जाएगा GE divided by CD. So GE will be equal to 3/7 times of CD. Fine. ये रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे CD के टर्म में, अच्छा AB के टर्म में लिखना है। तो अब जो है आई नो दैट CD is equal to twice of AB. So यहाँ पे CD की जगह मैं twice of AB लिख दूंगा, so it will be 3/7 into twice of AB, which is equal to 6/7 times of AB. ठीक है, ये चीज हो गई। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूंगा। इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, अगेन FG will be parallel to AB. So what I will have here, CF upon AD will be equal to FG upon AB. अब CF मेरे पास कितना है सर, देख लो जरा पीछे एक बार चल के देख लेते हैं। CF is given as, ठीक है, CF will be that much only. CF is given as, ये कितना रेशियो था, यहाँ पे 3 था, ये 3 था, ये 4 था, तो ये भी उतना ही होगा। So this will be CF is 4, 4/4 plus 3 will be equal to FG upon AB. So FG will be equal to 4/AB upon 7, 4/7 AB। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो। मुझे क्या चाहिए, मुझे FE चाहिए, विच इज इक्वल टू FG प्लस GE। अब मैं कहाँ लिखूं यार, रब कर देता हूँ, रब कर दूं, इरेज कर दूं थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन इरेज कर दूं। सेकेंड ट्रायंगल में आपने वैल्यू कैसे डाली वो समझ नहीं आया बेटा। ये जो पैरेलल लाइंस है ना, तो ये BE upon EC जो रेशियो दिया हुआ है 3:4, द सेम रेशियो विल बी फॉर AF upon FC। AF और FC का जो रेशियो होगा वो भी तो उतना ही होगा ना, क्योंकि द सेम लाइन इज, यहाँ पे आप BPT लगाओगे, देखो इस वाले ट्रायंगल में जब आप BPT लगाओगे तो व्हाट यू विल हैव, BE upon EC will be equal to BG upon GD। ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में जब आप BPT लगाओगे, व्हाट यू विल हैव, AF upon FD will be equal to BG upon this CD. So from here what you can say is BE upon EC is equal to AF upon FD। इस तरीके से मैंने वैल्यूज रखी। ठीक है, ओके सर थैंक यू। चलो अब अपन क्या करेंगे, Excuse me, sir. यस Sir, wouldn't it be DF upon AF is equal to GD upon GB? क्या बोल रहा है, फिर से बोलो। DF upon AF is equal to GD upon GB। तो सेम चीज तो मैंने भी तो वही लिखा है, मैंने कुछ गलत लिखा क्या? Sir, you wrote the other way round. देखो In the fine, see
I have just written the things directly. देखो, first just concentrate on triangle BCD. ठीक है, यहाँ पे जो है this GE is parallel to CD. तो अगर आप BPT अप्लाई करोगे तो it will be BE upon this EB, sorry, the BE upon EC is equal to BG upon GD. ये ठीक है? यहाँ पे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? प्लीज कंफर्म, से यस और नो. इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है आपको? No, sir. ठीक है. No, sir. अब इस वाले ट्रायंगल में बात करते हैं. तो इस वाले ट्रायंगल में जब आप बीपीटी अप्लाई करोगे तो हियर व्हाट इट विल बी, BF डिवाइडेड बाय FA विल बी इक्वल टू GD डिवाइडेड बाय BG. से यस और नो? Yes, sir. अब इसको उल्टा कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, आ गया रिजल्ट कि नहीं आया? अरे भाई, जब DF अपॉन FA इज इक्वल टू GD अपॉन BG है तो कैन आई राइट BG अपॉन GD इज इक्वल टू FA अपॉन DF? से यस और नो? Yes, sir. अब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? कैन आई इक्वेट दिस वन एंड दिस वन? Yes, sir. तो हो गया रिजल्ट सेम जो लिखा था वहां पे. हे भगवान, रुको यार, यू Yes, sir. guys are getting unnecessarily confused. चलो देखो, फिर से ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले ट्रायंगल पहले ट्रेपेजियम के रेशियोज की बात कर लेते हैं, देन वी विल जंप टू दिस क्वेश्चन. ओके, यू गाइस आर गेटिंग अननेसेसरीली कंफ्यूज्ड. ये एक कोई ट्रेपेजियम है, ठीक है, ABCD. okay, this is a line, say EF, that is drawn parallel to AB and it has been also been drawn parallel to CD. अब यहाँ पे मैंने एक BD को ज्वाइन कर लिया जो कि G पॉइंट पे मीट कर रहा है EF को. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं. अब सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं. तो इस ट्रायंगल में क्या होगा? बीपीटी लगा सकते हैं. बीपीटी कैसे लगाएंगे सर? BG अपॉन BG will be equal to FD अपॉन FA. से यस और नो? ऑनेस्टली ये जो इक्वेशन नंबर 1 लिखा है, ये इक्वेशन नंबर 1 सबको समझ में आ गया? से यस और नो? यस सर. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम क्या करेंगे? अब हम इस वाले ट्रायंगल में बीपीटी लगाएंगे. ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में बीपीटी लगाएंगे तो दिस EG इज पैरेलल टू दिस बेस CD ना. तो अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे बेटा BE अपॉन EC इज इक्वल टू BG अपॉन GD. लिख सकते हैं? लेकिन यहाँ पे देखो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 जो है, ये इक्वेशन नंबर 2 क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले ये बताओ. Yes, sir. हो गई. अब देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 में माय लेफ्ट हैंड साइड इज DG अपॉन BG. इक्वेशन नंबर 2 में माय राइट हैंड साइड इज BG अपॉन DG. तो क्या मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लिख सकता हूं? कैन आई राइट माय इक्वेशन 2 एज GD अपॉन BG is equal to EC upon BE? लिख सकता हूं? अरे 1 से डिवाइड कर, 1 से डिवाइड, 1 से डिवाइड कर दिया यार. If x is equal to y, then 1 upon x will be equal to 1 upon y, provided x और y 0 के बराबर नहीं है. ये तो एक अलग से कंडीशन हो गई. लेकिन if x is equal to y, then 1 upon x will be equal to 1 upon y ना. दोनों को 1 से डिवाइड कर दो. सेम चीज मैंने यहाँ पे किया है. तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज कंफर्म एंड से यस और नो. नहीं आई अभी भी? यस सर. आ गई, चलो ठीक है. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2.
अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं कंपेयर कर सकता हूं बिकॉज माय लेफ्ट हैंड साइड इन बोथ द इक्वेशंस इज सेम, देयरफॉर FD upon FA will be equal to EC upon BE. FD upon FA will be equal to EC upon BE. यही चीज हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था कि द साइड द डायगोनल, कोई ऐसा हमने अपन ने कुछ नहीं पढ़ा था उस दिन, ठीक है, आई बेग योर पार्डन, मैंने कुछ गलत बोल दिया। सो अब ये रेशियो कैसे लिखा समझ में आ गया सबको? प्लीज से यस और नो, देन ओनली आई विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। Yes, sir. ठीक है, कोई बात नहीं। You guys have taken just 10 minutes to understand this. I took some 1 year to understand this ratio. मेरे को साल भर लगा था इस रेशियो को समझने में। ओके, चलो देखते हैं। अब इस क्वेश्चन की आगे बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लें फिर से अपन, या अब नाउ आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करके आना, अगर नहीं सॉल्व होगा then we will discuss this question in the next class. Right? We'll discuss this question in the next class. Abhi currently I am leaving this question. Okay? अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, रेशियो लिखना है और दोनों को AB के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देना, बिकॉज फाइनली माय रिजल्ट इज रिक्वायर्ड इन AB. तो AB के टर्म्स में आप दोनों एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर देना एंड देन ऐड कर देना दोनों को, यू विल गेट द आंसर. Right? So I am leaving this question for you as a homework. Please take the screenshot if you have not taken. We will discuss this question in the next class. So, okay, fine. So we can do it with another method too. Which method, my dear? Can you please explain? Yeah, sir. So we can just extend both the lines and then we can form a triangle, and then since the lines are parallel according to BPT, we can find the value and we can take that one side as X. हाँ, कर सकते हो, ठीक है। So these were some of the questions जो कि मैं काम करूंगा, I will share this PPT with all of you. आप इसमें जो भी अनसॉल्व क्वेश्चंस है ना, आप लोग उन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर कर लेना, ठीक है। चलो, नाउ व्हाट वी विल डू इज, ये सारे तीनों पार्ट्स हमारे हो गए। नाउ आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जो कि उस दिन हमारा रह गया था, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो, पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। उससे पहले मैं इधर आ जाता हूँ साइड में। देखो, द स्टेटमेंट इज the ratio of area of two similar triangles is equal to the square of ratio of their corresponding sides. कहने का मतलब इनका ये है सर कि अगर एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल अगर PQR है, और अगर इन दोनों ट्रायंगल्स का, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, mind the word, if the two triangles are similar, then what will happen is area of triangle ABC divided by area of triangle PQR will be equal to the ratio of square of their corresponding sides, that is AB upon PQ whole square, which will also be equal to BC upon QR whole square, and which will also be equal to AC upon PR whole square. अब अपन क्या करेंगे, एक के लिए प्रूफ करते हैं और बाकी चीजों को वी कैन राइट सिमिलरली, ठीक है। अगर अपन ने एक रेशियो के लिए प्रूफ कर दिया कि इस रेशियो के लिए ऐसा होगा, बाकी रेशियो के लिए वी कैन राइट वेरी इजीली, वी कैन राइट सिमिलरली एंड वी कैन आल्सो लीव द क्वेश्चन देयर एंड देयर, ठीक है। अब कैसे करेंगे सर? देखो, यहाँ पे बात हो रही है एरिया की। आई एम ट्राइंग टू टेल यू फ्रॉम वेयर यू हैव टू टेक द हिंट। अगर मान लो आप भूल गए और ये थ्योरम आ गई आपके एग्जाम में, तो आपको कैसे आप हिंट लोगे, आप कैसे प्रूव करोगे? नॉर्मली लोग बोलते हैं कि 10th क्लास की ज्योमेट्री में देयर इज लॉट ऑफ थ्योरम, जो कि याद करते करते वो आप लोग क्या गुजराती में क्या बोलते हो, हम कंटाल जाते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं। आई ट्राई टू रेप्लिकेट इन गुजराती बट आई गेस आई एम रॉन्ग। तो याद करते करते हम जो है थक जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक भी थ्योरम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Just try to understand the basic. The basic thing is यहाँ पे
द बेसिक थिंग इज एरिया। आपको क्या निकालना है, आपको कहीं ना कहीं आपको एरिया की बात कर रहे हैं। तो एक ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल? द सिंपल थिंग दैट आई नो इज, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरिया माय डियर फ्रेंड्स, आई रिक्वायर बेस इनटू हाइट। जब अपन रेशियो की बात कर रहे हैं तो ये हाफ तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, उसमें वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। हाफ या कोई भी कांस्टेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो वन थिंग इज देयर, वी नीड बेस, एंड अनदर थिंग इज देयर दैट वी हैव इज हाइट। सेकेंडली, सेकेंड हिंट जो हमको मिलेगा यहाँ से वो ये मिलेगा कि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो स्क्वायर हो रहा है, दैट मीन्स ये जो हाइट है, ये वाली जो मेरी हाइट है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बेस के फॉर्म में एक्सप्रेस होने वाली है, ये मुझे पता है। दिस हिंट आई कैन गेस, और माय कॉमन सेंस इज सेइंग दैट ये जो हाइट है ये कहीं ना कहीं बेस के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। एंड द टूल दैट आई हैव इज सिमिलर ट्रायंगल्स, क्योंकि मुझे पता है सिमिलर ट्रायंगल्स में जो साइड्स होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने वाला है। तो ये बेसिक माइंडसेट है मेरा, जिससे मैं इस प्रूफ को करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज, आई विल ड्रॉ AM perpendicular to BC, and then I will draw PN perpendicular to QR. I will draw AM perpendicular to BC, and next I will draw PN perpendicular to QR. किसी के साउंड में डिस्टरबेंस है, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, देखो। Now what I will do is, see, just try to understand whatever has been done. Area of triangle ABC will be equal to half into AM into BC. AM क्या था सर? AM ये altitude था. Similarly, area of triangle PQR will be equal to half into PN into QR. PN क्या था सर? PN was this altitude. PN was this altitude. Fine. अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो ले लेते हैं। जब अपन ने रेशियो लिया तो BC अपॉन QR तो मुझे मिल गया। अब ध्यान से देखो, जस्ट ट्राई टू सी वेयर द थिंग्स आर गोइंग। आई गॉट माय BC इनटू QR, बट व्हाट आई रिक्वायर BC अपॉन QR होल स्क्वायर। और मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है, दिस AM अपॉन PN इज एक्स्ट्रा। सो व्हाट आई विल डू इज, आई विल अगेन गो टू माय फिगर एंड आई विल ट्राई टू सी वेदर इट इज गिविंग मी सम हिंट और नॉट। चलो देखते हैं। अब आ गए हम इस फिगर पे। इस ट्रायंगल AMB की बात करें और अगर इस ट्रायंगल PNQ की बात करें तो देखो, एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल PNQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। से यस और नो? फर्दर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ऐसा क्यों बोला सर मैंने? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ये मुझे दिया हुआ है, दिस इज गिवन, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। अब मैं कह सकता हूं ये वाला जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ABM, देयरफॉर व्हाट आई कैन से इज ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN। सो फ्रॉम हियर आई कैन से AM upon PN will be equal to AB divided by this PQ। यहां से मैंने ये कह दिया कि AM upon PN is equal to AB divided by PQ। इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 के तौर पे मान सकते हो। Further what I can say, since this triangle ABC is similar to triangle PQR, so what I can say is AB upon PQ is also equal to BC divided by QR। कह सकता हूं, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका साइड्स जो क्या होते हैं, उनके साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनली, उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। So this equation I can mark as equation number 2. Now kindly switch off your video. Now from equation 1 and 2, equation 1 or 2 say what I am getting here is
From equation 1 and 2, what I'm getting here is AM upon PN is equal to BC upon QR. Here I will write from equation 1 and 2, AM upon PN is equal to BC upon QR. अब BC upon QR की वैल्यू यहाँ पे रख दो, so you will get the ratio of, so what you will get here is ratio of area of triangle ABC divided out by area of triangle PQR will be equal to BC upon QR multiplied by BC upon QR, which is equal to BC upon QR whole square. This is how you were supposed to solve this theorem. क्या किया अपन ने इस थ्योरम को सपोज प्रूफ करने में? फिर से समझ लो, मुझे रिक्वायरमेंट थी BC अपॉन QR के होल स्क्वायर की, तो और मेरे को ये पता था कि मेरे को एरिया से डील करना है, तो कहीं ना कहीं इफ आई हैव टू डील विद द एरिया मुझे एल्टीट्यूड चाहिए, तो मैंने एल्टीट्यूड को ड्रॉ कर दिया. उसके बाद एरियाज का रेशियो ले लिया, जहां पे मैंने जनरल फॉर्मूला यूज किया, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज बेसिकली हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज. अब उन ट्रायंगल्स का एल्टीट्यूड का जब एरिया का मैंने रेशियो लिया, आई फाउंड दैट दिस टर्म इज एक्स्ट्रा एंड दिस पीएन टर्म इज एक्स्ट्रा. अब इस एम और पीएन को मुझे किसी तरीके से एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो एलिमिनेट मैं कैसे करूंगा? मैं वापस इस फिगर के पास आया एंड आई फाउंड दैट, आई आस्क्ड फिगर, तो फिगर ने बोला सर देखो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं. ये दोनों ट्रायंगल्स जब सिमिलर होंगे तो इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा वो इन दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर होगा. तो वहां से मुझे आई गॉट AM upon PN is equal to AB upon PQ. That will be my equation number 1. Further, I can say that since these two triangles are similar, so AB upon PQ will also be equal to BC upon QR. That will be my equation number 2. From equation number 1 and 2, I can say that BC upon QR is equal to, कहाँ गया ये? BC upon QR is equal to AM upon PN. उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो ले लो, you will get your answer. ठीक है? So this was the proof of ratio of areas of triangle. Somebody wants to say something. देख लेते हैं. Sir, your sound is cutting. I guess there is problem from your end, क्योंकि और किसी को तो शायद मेरी आवाज में कोई दिक्कत लग नहीं रही है. फाइन, चलो आगे चले. Well, there is no converse here, so we guys are lucky that there is no converse here. ठीक है, converse होता है तो थोड़ा सा proof और करना पड़ता है. So you guys are lucky that there is no converse over here. कुछ properties हैं. The ratio of the area of two similar triangles is in the ratio of square of their corresponding altitudes. जो कि अपन ने किया अभी. The area of two similar triangles is in the ratio of square of their corresponding medians. ठीक है, and it is also in the ratio of the square of their corresponding angle bisectors. तो एंगल बाइसेक्टर्स के रेशियो में होता है, मीडियंस के रेशियो में होता है, और एल्टीट्यूड्स के रेशियो में भी, एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशियो में भी होता है. एंगल बाइसेक्टर्स के स्क्वायर के रेशियो में होता है करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो, सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के, करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो में भी होता है. सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स के स्क्वायर के रेशियो में भी होता है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे बढ़ेंगे. कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो. एंड कौन से क्वेश्चन को करके बताओगे? इस वाले क्वेश्चन को कर दो, और एक d is parallel to this and this is this and this, ये वाला क्वेश्चन भी कर दो. और ये दोनों हो जाए तो ऊपर वाला भी कर लो. पहले ऊपर वाला ही कर लो यार. पहले तीनों क्वेश्चन्स करने हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो. नहीं हो पाएगा अभी, डिस्कस नहीं कर पाएंगे तो घर जाके ट्राई करना. ठीक है, 3 मिनट है आपके पास. 3 क्वेश्चन 3 मिनट. You don't have to write each and everything given to prove. ये सब कुछ नहीं करना. I want the answer. I want the answer and I want the proof.
वो कैसे लिखना है उसके लिए वी विल हैव मच इनफ प्रैक्टिस फ्रॉम जनवरी से हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। आपका हर वीक पेपर होगा तो आपको उसकी प्रैक्टिस, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आप लोग के जानने वाले जो रेजोनेंस में अभी 10th क्लास में थे उनसे पूछता हूँ कि कितने सारे पेपर्स हुए थे। जस्ट फ्यू डेज बिफोर देयर एग्जाम ऑल्सो लास्ट पेपर कंडक्ट करवाया गया था। सो लिखना नहीं है, आई जस्ट वांट द आंसर फास्ट। पहला क्वेश्चन हो गया। What about question number 1? Chalo, take your time, take your time. I can wait for another 2 minutes. But before that, just take the screenshot, हाँ? और एक बात और ध्यान रखना, घर जाने के बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करना बेटा, क्योंकि अभी आप जब देख रहे हो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये लगेगा कि हाँ ठीक है, सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। बट जब आप क्वेश्चंस करने जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं आ रहा है। कई सारे बच्चे मेरे को ऐसा बोलते हैं कि सर जब आप पढ़ाते हो तो सब समझ में आता है, जब हम क्वेश्चन करने जाते तो नहीं समझ में आता। ऐसा इसलिए है, द रीजन इज दैट when they don't practice. Mathematics is not like physics or chemistry, chemistry and bio, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन देख के आप आइंस्टीन या न्यूटन बन जाओगे। You will have to solve. आपको क्वेश्चंस करने के लिए आपको पेन और कॉपी खर्चा करना पड़ेगा। कभी मिलेंगे तो दिखाऊंगा। आप लोग को पढ़ाने के लिए मैंने आप लोग की पूरी बुक को सॉल्व करके रखा है। हालांकि हमारी ट्रेनिंग इतनी इंटेंस होती थी कि हमको बोला गया था सॉल्व करने के लिए, वो मटेरियल आज भी मेरे पास है। कभी मिलना हुआ इस साल तो दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे मैंने अपनी खुद की ट्रेनिंग के टाइम पे किया था। तो ये आप लोग की भी ट्रेनिंग है। इतनी प्रैक्टिस करो। आपका टारगेट होना चाहिए कि एक 200 पेज की नोटबुक आप एक वीक में खत्म करके भर के हटा दो उसको। और ऐसा नहीं कि बस एक पेज में आज इतना लिखा बाकी छोड़ दिया, क्योंकि सर ने बोला था कि 200 पेज की नोटबुक एक वीक में खत्म हो जाएगी। चलो, AD is 3.6 centimeter square. Somebody has sent me the answer. बेटा 3.7 तो हो ही नहीं सकता, because 3.7 will mean that it is there is some calculation mistake there. आप प्लीज एक बार चेक करो 3.7 कैसे आएगा।
चलो वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, फिर अपन डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन इफ टाइम परमिट्स देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1. इट्स ऑलरेडी 41. तो देखो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ दो ट्रायंगल्स हैं सच दैट एबीसी का एरिया जो है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डीईएफ का एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है. बीसी इज 2.1, ईएफ निकालना है. डायरेक्ट ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे लिख दो सर कि बीसी डिवाइडेड बाय ईएफ का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 16. अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो. स्क्वायर रूट जब आप लोगे तो व्हाट यू विल गेट इज BC अपॉन EF इज इक्वल टू 3/4. अब पुट कर दो वैल्यूज. BC की वैल्यू कितनी है 2.1, EF की वैल्यू कितनी है x, ये हो गया 3, ये हो गया 4. सॉल्व करोगे तो योर x विल कम एज 2.8. आपका जो x आएगा वो 2.8 आएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो. यहाँ पे सॉल्व करने में हो सकता है किसी ने ऐसा किया होगा कि BC की जगह 2.1 लिखा होगा, फिर 2.1 का होल स्क्वायर निकाला होगा, दैट वुड हैव कम एज 4.41. फिर डिवाइडेड बाय EF स्क्वायर किया होगा, फिर 4.41 को 16 से डिवाइड किया होगा, फिर मल्टीप्लाई किया होगा, फिर 9 से डिवाइड किया होगा, फिर जो रिजल्ट आया होगा उसका स्क्वायर रूट लिया होगा. आई होप किसी ने ऐसा नहीं किया है. आई जस्ट सिंसियरली होप किसी ने ऐसा नहीं किया है. अगर किसी ने किया है तो बताओ. चलो कोई कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब किसी ने नहीं किया, या अगर किसी ने किया भी होगा तो प्लीज ऐसे मत करना. व्हाट आई वाज सेइंग इज आप सबसे पहले यहाँ पे 2.1 लिखोगे, फिर EF लिखोगे, EF का होल स्क्वायर लिखोगे, फिर 2.1 का होल स्क्वायर लिखोगे, which will be equal to 9/16. So यहाँ से what you will get EF square is equal to 2.1 होल स्क्वायर multiplied by 16 upon 9. फिर यहाँ से what you will get is EF is equal to square root of 2.1 whole square multiplied by 16 upon 9. I hope किसी ने ऐसा हानिकारक कार्य अपने साथ नहीं किया होगा. अगर किया है तो just forget it, आगे से मत करना क्योंकि it will waste your lot of time. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर लास्ट. D and E are points on AB and AC such that D और E जो है वो AB और AC पे पॉइंट्स हैं. ये D हो गया, ये E हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया. Such that DE is parallel to BC. ठीक है. If AD is equal to 3, DB is equal to 2 and the area of triangle ABC, ABC का जो ट्रायंगल है एरिया है वो 10 है. तो मुझे ADE का ट्रायंगल निकालना है. ठीक है सर, निकाल देते हैं. देखो सर ध्यान से देखना, ये जो ट्रायंगल है we know that triangle ADE is similar to triangle ABC. क्यों है ABC के सिमिलर? क्योंकि भाई सीधी सी बात ये है कि ये जो लाइन होगा ये इसके पैरेलल होगा. ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है. एंड दिस लाइन इज, ये दिया हुआ है हमें कि दिस लाइन इज पैरेलल टू BC. तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है दैट मींस दिस एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे. ऐसा क्वेश्चन अपन पीछे डिस्कस कर चुके हैं. तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे. So what I will say here is AD upon area of triangle ADE divided by area of triangle ABC will be equal to AD divided by AB whole square. ठीक है. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE तो मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसको थोड़ी देर के लिए कुछ मत मानो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE रहने दो. और ABE का ABC का एरिया कितना दिया हुआ है, ABC का एरिया मेरे को दिया हुआ है 10 एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना है AD इज 3 तो ये तो 3 हो जाएगा एंड AB विल बी 3 plus 2 which is equal to 5. 3/5 whole square it will be. So now area of triangle ADE will be equal to 10 into 9/25. So this will be 2, this will be 5, which is equal to 18/5
which is equal to 3.6. Many of you gave answer as 3.6, which is correct. I'm desperately writing like this ताकि आप लोग सिर्फ इन क्वेश्चंस के भरोसे ना रहो, आप लोग खुद भी जाके सॉल्व करो. मैं इसीलिए ऐसा लिख रहा हूँ कि आप लोगों को अगर आप क्लास में ध्यान से नहीं देखोगे तो बाद में कुछ नहीं समझ में आएगा. इसलिए that's why I'm writing over the screen. आप लोग एक बार फिर से क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, अदरवाइज यू गाइस विल फेस प्रॉब्लम. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर लास्ट that we will discuss in the next class because the time is up and I have one more class. So right now I'm just stopping here